Good morning, students. My name is Harpreet Kaur and I welcome to you all in my class. First of all, we all will take a pledge together. I, Harpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now we will start with the lesson. Firstly, open your Cambridge Connection Social Studies booklets of Standard 4th. Open the chapter number 2, page number 9. We will start from here. Literary sources. Literary sources are texts written on different materials. They are also a source of studying history. Literary sources क्या होते हैं? जो कि कोई टेक्स्ट्स होते हैं which are written on different material, जो अलग अलग जगह पे लिखे गए होते हैं. जैसे किसी पिरामिड्स पे लिखे हैं या फिर किसी थम्स पे लिखे हुए हैं, ठीक है, पिलर्स पे लिखे होते हैं, फ्लोर पे लिखे होते हैं. These texts were written on tree barks, palm leaves, animal skin and wooden tablets. इनको कहाँ कहाँ पे लिखा गया होता था? ट्री बार्क्स में लिखा गया होता था. ट्री बार्क्स क्या होते हैं? उसके ट्रीज के जो जड़ तने होते हैं उन पे, पाम लीव्स पे, एनिमल की स्किन पे भी लिखते थे, वुडन टैबलेट्स पे भी लिखते थे. Some of these texts were written in languages that experts still cannot read. उनमें से कुछ टेक्स्ट्स, कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे होते थे, ऐसी लैंग्वेज में लिखे होते थे जो आज भी हमारे एक्सपर्ट्स क्या है पढ़ नहीं सकते अच्छे से, क्योंकि उनको वो लैंग्वेज समझ नहीं आती. मैनी इंडियन बुक्स आर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज. और बहुत सारी जो बुक्स है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? संस्कृत में. There are language experts who can read and understand these texts. और यहाँ पे कुछ लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं जो इन टेक्स्ट्स को पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं. The texts in history are the different types. हिस्ट्री के जो टेक्स्ट्स थे वो डिफरेंट टाइप्स के थे that we will define here. Writing on stones, walls, pillars, wooden tablets, bricks and metal are called inscriptions. जो writing ऐसे this is a like a pillars यहाँ पे लिखी गई है, stones पे लिखी गई है, इनको क्या बोलते थे? Inscriptions. Some of them represent the decisions taken by the rulers, lives and of rulers and other important events of that time. These are also classified as archaeological resources. इनमें से कुछ क्या प्रेजेंट करते थे? कुछ जो रिटन टेक्स्ट्स थे ये प्रेजेंट करते थे कि उस टाइम के जो रूलर्स थे, राजा थे, किंग्स थे, उनके डिसीजंस क्या होते थे, उनकी लाइफ कैसे थी और उनके इवेंट्स कैसे थे. मैनी एंशियंट टेक्स्ट्स टॉक अबाउट रिलीजन. बहुत सारे जो पुराने टेक्स्ट्स हैं वो किसके बारे में बात करते हैं? रिलीजन के बारे में. दीज इंक्लूड द रामायण, द महाभारत, द बाइबल एंड द कुरान. इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है? रामायण, महाभारत जो ग्रंथ लिखे गए थे, द बाइबल and the Quran. These books also tell us about religious teaching and the lives of people in those times. ये बुक्स है जो हमारे वेद हैं, ग्रंथ है, वो हमें किस चीज़ के बारे में टीच करते हैं, हमें क्या सिखाते हैं? रिलीजन के बारे में और उस टाइम के लोगों की ज़िंदगी के बारे में.
There were books written about the duties to be performed by the different sections of the history. और यहाँ पे कुछ ऐसी बुक्स थी जिसमें क्या शो किया गया है कि उनकी ड्यूटीज़ क्या होती थी, सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट लोगों की क्या क्या ड्यूटीज़ होती थी जो उसमें लिखी गई थी. They also listed the rules and regulations to be followed by the people. और उन बुक्स में एक और क्या लिखा होता था, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो क्या थे उस टाइम लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते थे. Many foreign travelers visited the courts of kings. They wrote about the things they saw. For example, Majestas was an ambassador to the court of Chandragupta Maurya. एग्जाम्पल के लिए क्या बताया गया है कि एक आदमी था जिसका नाम था मैगेस्टेनस बॉस, जो कि एक एम्बेसडर था, रिप्रेजेंटर था किस चीज़ का, चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट का. ही रोट अबाउट द पीपल, देयर वर्क एंड हाउ दे लिव्ड ड्यूरिंग चंद्रगुप्त रूल. उसने वहाँ पे रह के उस चीज़ की स्टडी की और उसने उन लोगों के बारे में लिखा जो उस टाइम में वहाँ पे काम करते थे, कैसे लिखते रहते थे, किसके टाइम में, चंद्रगुप्त के रूल में. समटाइम्स द किंग्स और द पीपल इन द कोर्ट wrote about the king's rule. All these texts serve as an important source of information for study of history. Apart from these written records, there are stories, songs, folk tales, and poems for which there are no written records. इनके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे भी रिटन रिकॉर्ड्स हैं जैसे कि हमारी स्टोरीज थी, ओल्ड सॉन्ग्स थे और फोक टेल्स थी एंड पोएम्स थी जिनका अभी तक कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला है. These oral sources of history talk about lives of people and important events in history. जो oral sources है, oral sources कौन से होते हैं, जो हम बोल के बताते हैं, that is a oral. जैसे ओरल क्या हो गया, स्टोरीज भी ओरल है, सॉन्ग्स भी ओरल हो गए हैं, फोक टेल्स भी जो होती है वो भी ओरल है. सो ये हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं, हिस्ट्री एंड द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ अर्ली टाइम. टर्न ऑन द नेक्स्ट पेज. प्रिजर्विंग आवर रिसोर्सेज. हिस्टोरिकल सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर लॉन्ग जर्नी थ्रू द पासेज ऑफ टाइम. हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं जो वो क्या हेल्प करते हैं, हमारी जो पास्ट की जो लॉन्ग जर्नी थी उसमें के टाइम के बारे में बताते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस यूज दीज सोर्सेज टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द पास्ट. आर्कियोलॉजिस्ट थे और जो हिस्टोरियंस थे वो क्या करते थे, इन सोर्सेज को यूज़ करते थे किस चीज़ के लिए, स्टडी करने के लिए और पास्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए. दे मेंटेन records of these sources for understanding the correct sequence of events and also to make future studies easier. वो क्या करते थे, वो records को मेंटेन करते थे किस चीज़ के लिए, जो sources थे उनको करेक्टली प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए और उनको जो हमारी फ्यूचर स्टडी थी उसको और ईजियर बनाने के लिए. जैसे उनके पास कोई पिक्चर्स थी, कोई बुक्स थी, उन्होंने उनको सेव करके रख लिया अपने पास. और अगर हम आज बात करें किसी किंग की, जैसे कि शाहजहाँ थे जो उन्होंने ताजमहल बनवाया था, उनके पास एक क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जिसमें हम जाते हैं, वहाँ पे जाके हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट the historians have preserved or saved to make our study easier. However, we all need to understand the importance and value of these sources and make efforts to ensure that they are maintained in good condition. So क्या है कि हमें ये जो सोर्सेज हैं उनकी हमें बहुत इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए क्या है, उनकी वैल्यू समझनी चाहिए क्या है, और हमें हमेशा ये श्योर रखना चाहिए कि जो हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, जो सोर्सेज हैं, उनको कोई भी हार्म ना हो. Museums and galleries are places where many of these sources are
kept and preserved. म्यूज़ियम्स और गैलरीज ऐसे सोर्सेज हैं. म्यूज़ियम्स क्या होते हैं, जहाँ पे हम जाते हैं, जैसे कि इंडिया में हमारे पंजाब में सबसे अच्छा म्यूज़ियम बना हुआ है श्री आनंदपुर साहिब में, जिसे हम विरासत ए खालसा बोलते हैं. वहाँ पे वो एक म्यूज़ियम है और एक काइंड ऑफ गैलरी भी है, जहाँ पे क्या है, हमारे सिक्स के जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वहाँ पे प्रिजर्व की गई है. देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ instances when people working at museums have protected those valuable sources of history through times of war from being damaged. यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे लोगों की एग्जाम्पल्स है जो म्यूज़ियम्स में काम करते हैं और वो हमारे वैल्यूएबल सोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जो कब यूज़ किए गए थे, जब वार हुई थी, लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ करते थे, उन टाइम के सोर्सेज को उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है. लेटर ऑन दे वर ब्रॉट बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस आफ्टर पीस प्रिवेल्डेड वंस अगेन. अगर उनको कुछ थोड़ा सा भी कुछ हो जाता था तो उनको क्या किया जाता था, उनके ओरिजिनल प्लेस पे ही वापस रख दिया जाता था. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू.